sharing a few updates on the future roadmap for the development of football in Ladakh region. We also have some important announcements coming our way. So without any further delay, I would like to request our General Secretary, Siriyang Mo, to take the stage. Ngajing Angmo Ladakh Football Association General Secretary. Yeja sangmala ning mitugji jun kabo sangme sangmala ngaja Ladakh media chosti kabo ngaja len taste ngaja national yeja cutting na din ngaja aji state level ka national level ka yeja ngaja ma rocks chinmoji gerde kabo ngaji goma journey start chosun pala Ladakh Press Club tam Ladakh media yeja rocks jaste ngaja national ngaja mani highlight gala song deba ning mitugji ji Tiningi tsangmala nyingni bumbalik tashi dilekjin kabo diri ngati fetus kap ma takpo galaji no kabo ngata All India Football Federation nampo Ladakh FA bo affiliate judges pa ye tsangmala Ladakh gangpo nyingni tashi dilekjin le Tiningi nyingni All India Football Federation President Vice President General Secretary tsangmala tos be nyingni tujichi kabo diri ngaja Ladakh FA bo ye national body na ngaja recognized affiliate judges pa tujichi Yang nija tsangmala dupi jodo kabo ngata Ladakh Football Association bo ngaya lo ngis kabo nija tsangma goma nija ngaya media nija tsangme support pages nija dupi no kabo ngaya 2019 na establish songde kabo ngaya journey ringoji glus patte na nija tsangme ro judges pages de ngaya dirin I supeka gyalka thok ning ne thukjeche yang ne to jile kabo ngata dirin Ladakh Football Association bo affiliate churches pages de ati Ladakh si youth changma lamman skap chinmoji gino kabo ngatai nilam ji tokshi gino le kabo ngatang ISL Indian Super League Indian Women League kabo national chanok santosh trophy nok ta dirin dalon nepal ati Ladakh represent churches no te bening ni tukje che changmala dine ngata yang nija changma kenken panok ngata dirin Member Parliament, Mr. Jamiat Singh Namgyal, CAC, then the UT Administration, Sports Secretary, Mr. Ravinder Kumar, Kabongaya Affiliation, Thobi Sangha, Lakon Sangme, support is just in Naja, National Body Nanga, National Sting and Mati Tubusama represent Junior, then Indo Nimangu Majo, then Sangmala Boom, Bari Tashi, Dilek, then Yang just any low in Nangati, Ladakh football, bo, Mati Ladakh Chikpinaman, State Chikpinaman, National Chikpinaman. Yang ati jiksen gampena ngon chukche sepe ngaje ningni person chen changmala tukje tasile Respected President Ladakh Football Association Kata Shikatu General Secretary Achiamo Karlobzan Faldan Katsya Katsepa other members and the members of media fraternity Assalamu alaikum and July. My name is Muhammad Ibrahim, Vice President, Ladakh Football Association. I am a native of District Kargil. This LFA was a dream before bifurcation. And I would like to thank each and every member who worked hard to make this dream true. Recently, in the month of February, we got the affiliation from All India Football Federation. And I would like to congratulate each and every member of Ladakh Football Association and all the football community of Ladakh. As far as Kargil is concerned, I would like to mention some achievements after the formation of Ladakh Football Association. Before the formation of Ladakh Football Association, we had only 10 to 15 clubs there. And that of boys category. But after the formation of Ladakh Football Association, at present we have 30 plus clubs in Kargil, and that is a great achievement. The biggest achievement of Ladakh Football Association is that before the formation of Ladakh Football Association, we have no girls team there in Kargil. But after the formation, recently we held a football tournament under LFA there in Kargil. A total of 4 girls team has participated there. This number will increase, inshallah, in future. And in the end, I would like to thank the members of Ladakh Football Association
to support the footballers of Kargil, and I wish that they would help us in future also. Another good news for the footballers in Kargil is that they have seen a football ground here in Spituk. Same football ground has been sanctioned for District Kargil. In the end, I would like to thank the media fraternity for coming here to cover this press conference. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का वक्त है, क्योंकि जैसे कई सालों पहले भी हमने काफ़ी बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और इसी जगह पे हमने कई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब हमने इस बात की घोषणा की थी कि हम लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं, जिसके तहत हम लद्दाख के फुटबॉल को एक नेशनल लेवल पे ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज कई सालों की मेहनत के बाद बहुत खुशी है हम सब के लिए और पूरे लद्दाख के लिए भी, और ख़ासकर फुटबॉल के गेम के प्रेमियों के लिए, क्योंकि जिस सपने को लेकर हम कई साल पहले इसी जगह पे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, आज उसी सफ़र का जो पड़ाव है, ये नहीं कहूँगा कि हम आखिर पर पहुँच चुके हैं, पर उस सफ़र की शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि अब लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ऑफिशियली एफिलिएट हो चुका है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो उसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि अब हमारे लद्दाख के जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़की हो, और जो मेरे सहयोगी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो कारगिल से हैं, उन्होंने कहा कि कारगिल से भी लड़कियों की टीम निकली है, और कारगिल में आज 30 से भी ज़्यादा के फुटबॉल टीम है, और लेह में उसी तरह कई सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, फुटबॉल टीम है। और लद्दाख के फुटबॉल का स्तर हमेशा से, क्योंकि हम एक हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो हमेशा से ये माना जाता है कि हिमालयन रीजन के लोगों में जो नेचुरल स्टैमिना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपके नेचुरल स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पर कभी हम लद्दाखियों में हमेशा से वो प्रतिभा ज़रूर रही है, पर हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम उस प्रतिभा को आगे ले पाए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर कई साल पहले हमें अगर एफिलिएशन मिला होता, तो इंडिया के कई बड़े क्लब्स में हमारे लद्दाख के बच्चे ज़रूर खेले होते, शायद राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चों ने इंडिया को ज़रूर रिप्रेजेंट किया होता, पर जो भी कारणवश से हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। पर अब जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनको ज़रूर मौका मिलेगा कि पहले हम राष्ट्रीय लेवल पर पार्टिसिपेट करें, और पर्सनली ऐसा ज़रूर मानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लद्दाख के बच्चे फुटबॉल में ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद कई स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने, चाहे वो एथलेटिक्स हो या साइकिलिंग हो या आइस हॉकी हो, इसी तरह कई खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, और उसी तरह जितने भी लद्दाख के फुटबॉलर्स हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। पर्सनली ऐसा खुद फुटबॉलर होने की वजह से काफ़ी भावुक भी हूँ, क्योंकि हम सबको कभी वो मौका नहीं मिला, जबकि हमने मेहनत बहुत की थी। पर LFA का शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे, और LFA का ये जो सक्सेस मिली है उसमें मीडिया कर्मियों ने जो रोल निभाया है वो बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक हमारे हर इवेंट को कवर किया है, और जब हमारा एफिलिएशन बिड की बारी आई तो आप लोगों का जितना कवरेज का फुटेज था हमारे पास, और उसका जितना भी प्रिंट आउट था, वो हमारे एफिलिएशन बिड में हमें बहुत ज़्यादा उसका हमें सहयोग मिला। तो LFA की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहेंगे। ये जो सफ़र था वो बड़ा कठिन था, इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है। इसमें निचले स्तर पर हमारे जो कोचेस हैं उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा योगदान रहा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री का ने बिल्कुल सराहनीय काम किया, इसी तरह बंदल ने हैं हमारे, और सबसे हमारे चेयरमैन का टशी खचू ने जितनी इस एफिलिएशन बिड में मेहनत की है वो हम सब जानते हैं। पूरे लद्दाख के जितने भी फुटबॉल कर्मी हैं और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रेस वीडियोस या राइटअप में देख रहे हैं, उससे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब की मेहनत के पीछे
कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। माननीय हमारे लद्दाख के एमपी जनरल सिंह नंगेल जी हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीसीज हैं और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंद्र कुमार जी हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। आखिर में बस मैं जितने भी बच्चे फुटबॉल प्लेयर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अब सिर्फ मेहनत की देरी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रास्ता LFA ने ढूंढ लिया है। बस इसी हर्षोल्लास के साथ सभी लद्दाख के फुटबॉल के प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। 정말 상할라 내가 미디어 관계자들이 부재체준 니자이가 정말 이거의 쇼타임 지난 이제 쇼주체 스피커 쇼체스바 근데 가족인 라다스라 이너티티 차톱 테스팅 보내 근데 고마랑 내가 라다스 풋볼 애소시에이션나 인 올 인디아 풋볼 페더레이션나 보이플레 신차체 스피커니 정말 상할라 내가 라다스 우스경 Ladak MP sepanjang sing nang skundun yang rasyon sospete por kata shikatsan skundun kumula dan mixali tujece mar de jugojo de komune mar de ma person mar ko zate kone mar recommend strongly recommend zate te diringata football all India football federation na diringata affiliation song to na te kongis ke skutini nyampo te ngata UT Ladakh secretary उसको रंजन जी हम मार्केटे को एक करना है मार्केटे रिकमेंड और मार्केटे साथ साथ तेना चोला तेने आता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर गन्ना किरण रिजिजू जी इंडो या तेने आता अनुराग ठाकुर जी इंडो होंग ने अपने मार्केटे का या ये एफिलिएशन चार्जेस ना मार्केटे को ने मार्केटे का या साथ मार्केटे को ने रिकमेंडेशन में स्ट्रांगली जाते तेने होंग ने स्कूटिंग ला तेने होंग समय स्कूटिंग ला तेने आता रिंग लद्दाख से All Ladakh Football Association को तेरे बताया All India Football Federation ने को affiliation सोचो तेरे ये न्यापो लद्दाख से चालियां से लोग टुक छमाला ताशी दिलेक्शन बुम्बारिशन तेरे बताया दिम्बे तेरे बताया उसे चले टुगोनी फिर मर तेरे बताया प्लेटफॉर्म में चल मौजिक टॉप तेनो तेरे ये फुटबॉल एसोसिएशन ने पूरा टीम में पूरा लोकल पूरा तेरे उसे चले टूसिन ना तेरे बताया लोग टुक छमाला Gata pes met pa kagil ne indo le ne indo jamtam ne indo lubra ne indo zaskar ne indo sangma suina gata salyo suina gata azugyo kyudyo te tugul na gata chance dance te ne gata kazugi national level ga cheche si member te gata da ladakh se lok tugul la tene misali footballer gulla te tembe gata platform ma chenmo jik top te no te ip all India football federation gyu te ne gata national level ga kazugi gata utkan log ne na gata national team जी ने बताया team का जो को participate जोस्पिन इन नाता योंचेशन ने तो गुने नाता ने मां बताए tournament league जे बताया जी छात न तेना बताए जाखन बताए ना participate जो जैसे ना नाता मरते आजुक थोप जो ना platform match मोजी थोप ते लो तेने ये तेना ने यापो तेना नाता लोग तेना ना लद्दाख से लोग टुगुल नाता से टुगुल ला तेने नाता stamina magyara yo chest specialist tene ngata chugon la tene dembe e football le kane tene ngata last point via mari tene ngata yagar tani kana ta tamshi national level set ate kana ta chugon la tantos mari chache no samara tene inna na nyampo tene nija suspect pa media pa langias tene gyute tene ladakh se tamshi ngata footballer kon la tene na ye joueur tene nija tsama tene ngata football ladakh football association ne nyampo ngata साथ ते निजा गया ना को तुम ते स्कोर साथ ते ngata kazuk tournament kazuk league kazuk match chat na te ngata changma te ngata thi te kazuk निजा ngata एक selection chose te kale ne do kargil ne do te ne changma la te na jin te nyampo ye ngai team te ngata ek ngai executives ngole do de sangdo je do te ne mohammed play changma la ne tukje che jin te निजा changme operate za chess bana te ngata changma azuk za chess pick te ne dering ladakh se tene mixale tene ngata football all India football federation ne po ngata affiliate churches po tene dembe ngata ladakh spot sangme fi ma thatpes peri no tene ina ne po ni ja sangmala ladakh se do sangmala tuje che ju tene nyapo nge media pa nge sangmala nge tuje che ju le पहला टूर्नामेंट डेब्यू टूर्नामेंट जो कि हीरो जूनियर अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी असम में हो रहा है। तो इस टूर्नामेंट डेट जो है वो 5 मई
2022 टू 24 मई 2022 है। और इसके लिए इस टूर्नामेंट के लिए जो ओपन ट्रायल्स ले करगिल दोनों में होंगे उसका डेट जो है 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2022, और जिसमें 4 और 5 जो डेट है वो उसमें हम जितने भी प्लेयर्स लड़कियां हैं ले में करके में उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2 दिन में होगा, पहले 2 दिन में। उसके बाद जो है वो फिर रजिस्ट्रेशन जो बंद हो जाएगा, उसके बाद उनका ट्रायल होगा 9 अप्रैल तक। और इस ट्रायल को हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में। और जो पहला फेज जो है ओपन ट्रायल का, उसमें प्लेयर जो प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2005 टू 2007 31 दिसंबर 2007 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो नेशनलिटी जो भी प्रूफ है, राशन कार्ड या पासपोर्ट, इंश्योरेंस पेपर, अदर वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आधार कार्ड जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इस ओपन ट्रायल में। और अब बीओडी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल से मिलता है या हॉस्पिटल से मिलता है, जब बच्चे जब बोर्न होते हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। और जितने भी जो प्लेयर्स लड़कियां जो यहाँ ट्रायल के लिए आएंगे उन्हें हम उनसे जो कोविड वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो दोनों चाहिए होते हैं और चाहिए हम यहाँ ट्रायल के लिए। और जो सेकेंड फेज जो है उसमें हमारा नेशनल कैंप पे क्या है कि जितने भी प्लेयर जो इस एज कैटेगरी में फॉल करेंगे और जो कि स्पीडो के टूर्नामेंट पे स्पीडो के एस्ट्रो ट्रक पे हमारा जो ट्रायल हो गया वहाँ पे नेशनल कैंप लगेगा। उसके बाद जितने भी प्लेयर आने के बाद जो हमारा नेशनल कैंप है वो 11 अप्रैल टू 1 मई, जितने भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है, जितने भी ट्रायल के लिए लड़कियां आएंगे तो उनका जो कैंप चलेगा वो 11 अप्रैल 2022 टू 1 मई 22। उसके बाद उस ट्रायल में जितने भी प्लेयर करगिल या ले से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स आएंगे वो प्लेयर्स और ऑफिशियल कोच, असिस्टेंट कोच या फिजियो जो भी टीम के साथ जो गुवाहाटी असम जाएगा उनका AFF सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उनका नाम अपलोड होगा, ठीक है जी। फिर थर्ड फेज में हमारा हो गया टूर्नामेंट में प्लेयर्स और ऑफिशियल दोनों 2 मई को यहाँ से डिपार्चर असम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ। इसमें ऐसा है ना, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ हमारा एफिलिएशन होने के बाद जो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमें चलना है और उनके जिस तरह हमें डायरेक्शन आते हैं उसी हिसाब से हमने जो भी बच्चों को जो भी मतलब कहीं लीग में जाना होगा तो प्रॉपरली हमने बच्चों को कोचिंग करके उसके बाद ट्रायल करके उसके बाद हमने सिलेक्शन करके फिर हम भेजेंगे। इसी तरह अभी हमें हर एक क्लब के साथ हमने उनको कोचिंग किस तरह करना है, क्या करना है, हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बायलॉज के हिसाब से हमने पूरा चलना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा LFA का हमारा जो आगे का जो रोड मैप है उसमें मेनली 2 पार्ट्स में है हमारा जो, क्योंकि अब एफिलिएशन होने के बाद सबसे पहले तो हम AIFF का जो पूरा ईयरली कैलेंडर है, जैसे कि अभी अनाउंस हुआ कि हम जूनियर नेशनल की लड़कियों को भेज रहे हैं, उसके बाद सीनियर नेशनल आएगा, बॉयज़ का सब जूनियर आएगा, फिर गर्ल्स का सीनियर आएगा, फिर बॉयज़ का सीनियर आएगा। हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो AIFF के कैलेंडर के हिसाब से ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज करके टीम बना के टीम को ट्रेनिंग देके टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाने का है। और हमारा जो दूसरा जो हाफ है LFA का वो है हमारा कि हम एक ग्रास रूट प्रोग्राम चलाने वाले हैं जिसमें हम लेके हर रीजन्स में एक सेंट्रल सेंटर्स और नॉर्मल सेंटर्स चला के वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग देकर और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ताकि उस टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके उसका एक पूल बना के एक सेंट्रलाइज सिस्टम करके वहाँ पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें ताकि उनके से जब अगले नेशनल्स के लिए जब टीम निकले तो एक प्रॉपर और एक प्रोफेशनल लेवल का प्लेयर निकल के आए। तो इन 2 भागों में हमने LFA को फिलहाल हमारा जो रोड मैप और आगे का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से संदोजले ngata ngal ngata lawak sena zik sono kazuk sports person di ngata kilo games se se ngata funding problem no se pare ngata donation churu pare ngata
zuk kala jong hala ina pas na zong ta I selected player football gun la tene la nije all LFL na ngata funding ye kya UT administration is sanction hoya all India football federation ne या कोई स्पॉन्सरशिप Jadi LFA is originally ngalanga affiliation to bisa ngalanga cha nisa sama apa dan ngalanga cha sponsorship cingin cing ngaja ngaya nak zuk ngaya belum nak support hobre takabo All India Football Federation nak ngaya affiliation so to yokma kau ngaja government UT government ala dete kan ngaja program tu le funding tu parte nang All India Football Federation na zuk income bo generate to just like different ways tu le Kabo club naya club registration fee jono student register fee jono ini CSR funds maupun ini sam sih ngaje association ngaje active tu na sam sih ngaje plus on the mangcha CSR funding itu kira dilan ngaje mata ladak satang ladak sports council form macam no ladak sports council form cina kabo ngatai cicik itu tu mana ya games susu invitation games jono susu government recognized games jono le Kabo government recognized games youth na tebo government funding jono le to government na kora funds igu kya tate ka aid chobos na tente noera association la chik penny ni ping bo sano le thore yung ches chane player ni pia tis pa ni na thore chache chane तेना ऐसे बनता है मता टीम जी की करने आता तैयार चोस्ते मता डेली चेतो है कर चेतो नेशनल लेवल से अच्छा नहीं है वो तेने गजू में ननिंग गुड़गांव मता टीम जी का क्या ते टीम को मता अंडर 17 मता टीम जी का बॉयज अंडर 17 है टीम जी का पिंते जने में नेशनल सोस्पा मैं रिक्वेस्ट चोस्ते तेने कॉमन तेने रिकमेंड चोस्ते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रविंद्र सुंदोने कौन है मैं चलो चचेस ना यों चेसे टिका रिपीने को मता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चोने फ्लूगुन लातांस दिया है तेना तो बात तेने यों चेसे ने तुसी ना तेने मता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मैं मार्च दे रविंद्र सुंदोने मैं तो जो आपकी निजाची सपोर्ट जो मैं चोने पूरा सपोर्ट चुन तेने कौन है मैं मार्च दे रेवान की यों चेसे तुसी ना मता ची टीम दिखा लना तेने मता चुगुनी का खर्चा हो तेने मांग चाक तेने यूटी का तो बेटो तेने मांगूं गया रहा तेने कसु चोगना तो मैं राइकने मैं स्पॉन्सर साथ चोगना मैं तो चोस्ते ना Kaleta daksa nije I association form joste Ladakh Football Association form joste tangata players ma mangpo jengi je selection nang pitching gun zatche no galale inang ngata town area na cham jitu te gon la shayad ngata internet access na chi sangme jaste information thop che no rangjine inang gamyul gon la kavena rural gon na ma mangpo talented yo do ngata players gon te gon pitch che sa nije yang chitong plan special plans rigyo dale मैं already चलता ना मैं क्लब यो तुम लोग यार ना तो नूरे ना मैं यो संस्कारी ना यो मैं करूँ समय क्लब यो तुम कौन क्योंकि तेरे कार चुगुन क्या लगे तो ना ताकि select चोचेस ना selection चोचेस ना तेरे ना मैं क्लब उनकी टी चोचेस ना yang infrastructure bo ka shiyot le ngata daksa ngata legon la ngata football ground nis tokshi ya sum tokshi yot no gamyul gola ngi je kokshi infrastructure plan zadat le दसा सपत्तरों ना ताकि infrastructure होते हैं ग्राउंड तुम में तो ना कज़ू ना ताकि यूर ना गाँव ना ताकि स्कूल बुनी ना ग्राउंड कज़ू भी होते हैं ना चोरी मानी माँ की क्या लग ग्राउंड जिक माने लेते हैं testing jo itiwa chichik ngi kanele daksa ngi je football team je ngata women culture se no gola le gyuspa te man payang yong che shan tus la ngata mangpo yodo I selection trial bena sam je transparency yong che no te okazuk shi process yodle इन हमें पूरा जमशी में ताकि लेनी हो तो करके नहीं हो तो कानी हो तो ना इतने उनका यंपोंग आई कने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ना इस यूज़ पे जॉब करते थे ना ताकि यूथ स्पोर्ट्स से काटा शिकश करता तो या कौन है ना ताकि टेक्निकल मीच करता तो कौन अन्य का ना ये उसके यूज़ पे ना सिलेक्शन चोज़ा ने पूरा बस अपना मैं वीडियो ना यंपो कज़ुई के ना ताकि वीडियो चोज़ते तेने एक्सपर्ट मोको ना ताकि कौन से लेनी तो करके ना करके यूथ स्पोर्ट्स ना ताकि जॉब करते कौन ना क्योंकि कैश करते तेना तो लेना कज़ू ना लगाई चोज़ते तेने ना ताकि यूथ स्पोर्ट्स से काटा शिकश करते तो कज़ू ना सिलेक्शन चोज़ते अंडर 17 वाइस केस ने तेने ना ताकि तेना तो लगाता Ladakh से म फुटबॉलर निंपा का मामा तो उनका या का स्क्वाड जुस्ते कौन आ का जो स्क्वाड ते कौन है ना का सिलेक्शन जो कौन स्क्वाड है बिना तेना तो लगा योंचे से तो बिना कज़ू ना लगा ट्रांसपेरेंसी ना पुचोस तेना तो लगा योंचे से तो सिना सिलेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंसी बोलते कार टुगुने ना तेंबे क्यों तेना टुगुने ना ताई ये ना ताचे से ना पूरा कोशिश बोचेस ना रिवाचिन मोल yang tik tigale yang tiwa tik tik ngata daksang ni je probable team re coaching sal ni yoda ngata yodo pa Actually, ngale is a question to get it up to well. Any selection trial में the transparency use tas देखे ना तेने अगर trial शायद नहीं
Two trial in the neck. Then I coach Ika Shina took you there. Then I pamphlet to Kanaka to dress up, that's the mentality, physical, passing, kicking, so on. Her coach, Alala, Rana, Kita Tumjan, the paper for Tumjan. Then put some related on the hard week on the Rana stand well. Then I'm going great for the poor, average, good, excellent there. Then last person stage near the step kicking good tick to good get Tumjan. And then young coach take the gas on the thing was now kicking good. K बेशक के जैसे कि ठीक बैठ जाते थे उसके यार एवरेज जाते थे उसके इनमें दिन में संगा पूरा संगा ट्रायल छाड़ते इनमें संगा दुख से दिन में पेपर को दूना पड़ते हैं ऐसा चीज़ लेते हैं टू काव जब ऐसे को पोजीशन को मार सकते जैसे कि टू जिक्जे कोच संगे एक्सीलेंट तंग होना कि ना इनके टू उसमें सिलेक्शन वो बोलते थे इसका कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप कह रहे हो कि किकिंग पासिंग और इसमें जितने भी यहाँ कोचेज है वो देखेंगे कि इसका कंट्रोल कैसा है या पुश पास कैसा है रिसीव कैसे करता है वो सोचता कैसा है गेम के बारे में कैसे सोचता है एंगल देखता है कि नहीं देखता या दूसरे प्लेयर के साथ कैसे बर्ताव करता है उसका पहनने का ढंग बोलने का ढंग ये सब जाके अभी तो बाहर जाके दूसरे बड़े टूर्नामेंट में फिर जाके फर्क नहीं होगा। अच्छा चलो भाई आपने अभी कहा कि टेक्निक्स के बारे में आप बता रहे थे कि जैसे फुटबॉल अभी अंडर 17 वुमेन्स का गर्ल्स का तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत सारे लड़कियाँ होंगी जो पार्टिसिपेट भी करेंगे उनमें से आप पहले तो प्लेयर्स उनके रनिंग की या शूटिंग से और सबसे पहली बात फुटबॉल में टेक्निक्स आती है आप जैसे आपको प्लेयर आता है तो आपको पहले तो ये पता लगाना कि डिफेंडर की फॉरवर्ड एक मिडफील्डर है फॉर एग्जांपल उसके टेक्निक हिसाब से तो आपके पास उतना समय है कि पहले आप प्लेयर्स को बुलाए ट्रायल करे फिर उसके में डिफेंडर कौन है फॉरवर्ड कौन फिर टेक्निक्स पे काम करे क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट में आगे जाके हर चीज में उसके लिए आपको टाइम तो चाहिए होगा ये अंडर 17 was in a individual player में खेला इसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो खेलने वाले लड़के हैं वो ही आएंगे ठीक है इसमें हमने क्या रखा है जो 6 डेज का जो ट्रायल है इसमें हम बच्चे को परखेंगे और सिलेक्ट करेंगे ठीक है हर कोच अपना अपना हिसाब से करेंगे तो बाद में जाके जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उसी जो करगिल में अलग सेलेक्ट होंगे ले में अलग दोनों को मिला के जो एक टीम फिर हमारे लिए हमारे पास कम से कम एक महीना है 30 डेज का हमारे पास या 20 से 30 डेज का हमारा डेज हमारे पास जो कि हमें प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है तो उसमें हम फिर बच्चों को अच्छे से तैयार करेंगे टूर्नामेंट के लिए तो बेसिकली ये ट्रायल्स उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले थोड़ा खेला हो फुटबॉल अगर कहा जाए क्योंकि जब जो नए जो शौक से आएंगे जो कि आप हर साल कोई ना कोई फुटबॉलर लद्दाख में उभरता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अभी जो ट्रायल जो आप बात कर रहे हो वो उन गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल में जो कि थोड़ा सा पहले खेल गए या खेले नहीं रूरल एरिया से भी काफी लड़कियां तो दौड़ने में अच्छी होती है खेलने में अच्छी होती है शूटिंग अच्छी होती है बॉडी अच्छी फिजिकल अच्छा होता है क्योंकि ऐसा फुटबॉल गेम में बेशक हर प्लेयर में हर क्वालिटी नहीं होता है हर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होता है कि किसी का किकिंग अच्छा होता है तो किसी का पासिंग होता है तो किसी का बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा होता है हेडिंग अच्छा होता है जो बॉल को नापने का वो तरीका वो अच्छा होता है तो हम सब जो पैरामीटर है हमने वो रखा हुआ है उस हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो सिलेक्टेड टीम है वो हम उनको एक महीने के लिए हम उनको ऐसा जो हमने जो कोच सब मिलके हमने एक करिकुलम बनाया जो कि उसी करिकुलम के हिसाब से हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे एक महीने के अंदर ताकि सबसे ज्यादा वो जो भी ड्रिल्स हैं वो सीख सकें। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा सेम जैसे आप कह रहे थे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि एक कोच और एक स्काउट डिफरेंट होता है एक स्काउट होता है उसको पता है कि किस तरह की टेक्निक्स या क्या क्या टैलेंट उसमें उस बच्ची में देखना है सो हम उस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो लड़की एकेडमी में हो या किसी स्कूल में किसी फुटबॉल टीम में होना जरूरी नहीं है हर एक हम किसी प्लेयर को कहते हैं एक नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी हो तो उस तरह से स्काउटिंग में देयर आर लाइसेंस कोचेस हैं ये लोग एआईएफएफ से लाइसेंस है उनको स्काउटिंग की भी फाउंडेशन कोर्सेज मिली है उससे क्या होता है कि हर एक कोच स्काउट नहीं कर सकता तो स्काउटिंग में आप आइडेंटिफाई करते हैं एक नेचुरल टैलेंट
किसी बच्ची का अगर किकिंग अच्छा है या नॉट जस्ट फिजिकल, उसका अगर मेंटालिटी अच्छा है, बिकॉज हर एक अच्छा प्लेयर आप समझ सकते हैं कि एज अ टीम प्लेयर नहीं हो सकता। खिलाड़ी आने बाकी है, जब ट्रायल शुरू होंगे तो इंटरेस्टेड जो खिलाड़ी आएंगे तो उनको किस तरह के सुविधा दी जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, क्या एलएफ उसको कौन सा करेगा या इंडिविजुअल उनको आना? पहले तो उनका वहाँ ट्रायल होगा कारगिल में। पहले इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें लगभग 4 गर्ल्स टीम ने पार्टिसिपेट किया था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था कारगिल में गर्ल्स की टीम। तो अब उन 4 अभी 6+7 कुछ ऐसे टीम है जो लड़कियों का, अब उनका पहले ट्रायल होगा, फिर उनमें से जो अच्छा खेलेंगे, कोच है LFA के वहाँ पे हुसैन है, इलियास है, जावेद है, वो सब वहाँ देखेंगे। उन जो प्लेयर अच्छे खेलेंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उनको सिलेक्शन करके LFA के थ्रू उनको लेह में लाया जाएगा, यहाँ स्पीतू के ग्राउंड पर उनका 1 महीने का कम से कम जो लेह से सिलेक्ट होगा, जो कारगिल से सिलेक्ट होगा, उनका 1 महीने का यहाँ पे कैंप होगा, फिर उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। कितना मुश्किल रहता है किसी भी नए प्लेयर को आप ट्रेन करते हो या उनको उनकी कमियों के बारे में बताते हो, तो कितना वो चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि आने वाले समय में अब उस पर ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि ये जो लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ये बड़ा नाम बन चुका है, कितना चैलेंजिंग रहता है? मुश्किल तो बहुत बड़ी है सर, मगर हमारे कोच भी ट्रेनड है, उनको लाइसेंस कोच है LF से, तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हर इंडिविजुअल्स पे जाके, जिनका जो भी स्किल्स अच्छा हो उन पे उनको फोकस रहने को कहते हैं। तो उनको ये कोच की मेहनत से हम उन जो प्लेयर्स है उनको अच्छा बनाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ट्रेनिंग के बारे में बोल रहे हैं जो, इसमें क्या होता है कि पहले होता था कि तुझे डिफेंस खेलना है, तुझे बैक खेलना है, गोल जाने नहीं देना है, वो चलता था ले में, और गेम ऐसे ही चलता था। अभी जो है अभी थोड़ा प्रोफेशनल हुआ है ले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अभी जो फुटबॉल बड़ा 11 प्लेयर का जो टूर्नामेंट मैच होता है, हम उसको तोड़ के ना एक करके खिलाते हैं। पहले 1 to 1 होता है, 1 to 1 में आप अच्छे हो गए, फिर 2 to 2 खेलते, 2 versus 2, उसमें अच्छे हो गए, फिर 3 versus 3, फिर 4 versus 4, फिर 5 versus 5, 7 versus 6, ऐसा करके फिर लास्ट में जाके 11 versus 11 होता है, तब जाके एक अच्छा टीम बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हर प्लेयर जो है उनको अटैकिंग डिफेंडिंग सारे प्लेयर को सिखाया जाता है, क्योंकि किसी प्लेयर को कहीं भी डिफेंस कर सकता है, डिफेंस वाला जाके गोल भी मार सकता है। Good evening, everyone. To conclude, first of all, I would like to convey my sincere gratitude and thanks all the media persons who all are present here. The Ladakh Football Association today is the governing body of football in UT Ladakh, all because of your continuous support and trust on us. We will continue to work on a grassroots level and trust development football in the Ladakh region. I would also like to thank our executive body members, Chairman Kartashi Gelsen Khachu, Vice President Ka Siam Dorje, Vice President Mohammad Ibrahim, General Secretary Sriyam Ho, our admin team, and special thanks to our technical team and coaching team. This event would not have been possible without the support of Honorable CAC Shri Advocate Tashi Gelsen, LHDC Lake, Honorable Member of Parliament Shri Jamian Sri Namgyal, Honorable Sports Secretary Shri Ravindra Kumar, our football clubs and all the football players of Ladakh. I would thank you to each and everyone for believing in us. And last but not the least, I thank our venue partner, the Abdus, and the travel partner, Ladakh Odyssey. Thank you so much, Julian.